ہمیں اپنی ایک مدعے کو رکھنا ہے. یہ احمدآباد جو ہے نا، آپ کو بتاؤں، یہاں یہ پورا انڈیا حکومت کرنے والا، بولو سلطان مظفر، بولو کون سلطان مظفر، ان کا انتقال ہوا، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آئے ہیں سلطان احمد، بولو سبحان اللہ، جن کا مزار مبارک ہمارے احمدآباد میں. ارے بولو نا، ہاں بولو نا، میں تھوڑی احمدآباد کا رہنے والا ہوں، بولو نا. لیکن میرے کو معلوم ہے جامع مسجد کے قریب مانیک چوک میں ان کا مزار مبارک ہے. کن کا؟ سلطان احمد کا مزار مبارک جامع مسجد کے قریب مانیک چوک میں، جو کتابوں میں لکھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سلطان بر کے وفات ہونے کے بعد سلطان احمد جب تخت نشین ہوئے، دیکھو اس زمانے کے بادشاہ، حالانکہ سلطان احمد بادشاہ بنے، ارے بولو سلطان احمد بادشاہ بنے. بادشاہ اس زمانے کا بادشاہ بہت اونچا سمجھا جاتا. سلطان احمد بادشاہ بنے، حکومت ان کے پاس، دولت ان کے پاس، ارے میرے دوستو کام کرنے والے ان کے پاس، نوکر ان کے پاس، حشم و خدم ان کے پاس. لیکن سلطان احمد جب بادشاہ بنے، سب سے پہلے سوچا میں اللہ کے ولی سے ملاقات کروں گا، ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. چنانچہ اتنے بڑے سلطان احمد چلے گئے اور شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. کون شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ؟ وہ بھی تو یہیں پر ہے نا. ارے بولو نا ہاں، بولو نا ہاں، وہ بھی یہی پر ہے نا. یہ سلطان احمد جن کا نام آپ یہاں پر بورڈ پر دیکھ رہے تھے، یہ سلطان احمد جو احمدآباد کے بادشاہ بنے، انہوں نے احمدآباد کو آباد کرنے سے پہلے اپنے دل کی دنیا کو بنایا. اپنا دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے. اچھا بیعت ہو گئے، اب تو شیخ احمد رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ شیخ، بولو شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ شیخ. اور یہ جو شیخ احمد، یہ ان کے کیا بن گئے؟ مرید. یعنی اللہ کا ولی شیخ ہے اور بادشاہ مرید ہے. ایک مرتبہ سننا، ایک مرتبہ یہ سلطان احمد جو ہے نا، سلطان احمد یعنی احمدآباد کے بادشاہ، وہ اپنے شیخ کو کیا بولتے؟ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ سے کیا کہتے؟ میرے کو معلوم ہے آپ تو حضرت خضر سے بہت ملاقات کرتے ہو، اور حضرت خضر کے بارے میں لکھا ہے یا تو پہلے وہ نبی تھے، بعد میں اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے ولی بنا دیا. تو شیخ احمد سلطان یعنی سلطان احمد جو بادشاہ ہے، وہ اپنے شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں میرے پیر اور میرے شیخ، مجھے معلوم ہے آپ تو روزانہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتے، کبھی میری بھی تو ملاقات کرا دو. یعنی بادشاہ سلطان احمد مانگ رہا ہے، شیخ احمد کھٹو سے مانگتا ہے کہ تو اللہ کا ولی ہے، تم تو روزانہ حضرت خضر سے ملاقات کرتے ہو، کبھی میری بھی تو ملاقات کرا دو. حضرت شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نے کہا ایسے تھوڑی ملاقات ہو جائے گی بھائی، حضرت خضر سے ایسے تھوڑی ملاقات ہو جائے گی. جب وہ آئیں گے میں ان کو پوچھوں گا، اگر وہ اجازت دے دیں گے تو تمہاری ملاقات ہو جائے گی. اب شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نے حضرت خضر سے پوچھا کہ یہ جو سلطان احمد ہے، بادشاہ ہے، یہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ سمجھنا، انہوں نے حضرت خضر سے پوچھا کہ حضرت آپ تو ولی ہے اور معلوم نہیں آپ کتنے بڑے ہیں، لیکن یہاں کا بادشاہ سلطان احمد آپ سے ملاقات کرنا چاہتا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا وہ سلطان احمد بادشاہ کو کہہ دو پہلے 40 دن عبادت کرے، دل صاف ہوگا تو اللہ والے سے ملاقات ہو جائے گی. دل صاف ہوگا تو اللہ والے سے. یہاں تو کوئی بھی اللہ والا آتا ہے جا کے پھٹ کر کے ملاقات کر لیتا، سوچتا نہیں کہ کتنے پاپ کر کے آیا ہوں. اور آپ کو صحیح بتاؤں، اللہ والوں کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے، کوئی گناہ کر کے آتا ہے اس کے دل میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گناہ کر کے آیا. وہ الگ بات ہے کہ وہ چھپا دیتا ہے، اس لیے کہ پیدا کرنے والا خدا بھی تو چھپا دیتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے شیخ احمد کھٹو سے کہہ دیا کہ سلطان احمد کو کہہ دو 40 دن عبادت کرے، اس کے بعد میرے پاس آئے. اچھا 40 دن عبادت کیا سلطان، یہاں کے بادشاہ سلطان احمد نے عبادت کی، 40 دن عبادت کی. 40 دن عبادت کرنے کے بعد کہا، شیخ احمد کھٹو سے کہا ابھی بولو نا حضرت خضر سے بولو 40 دن ایک چلہ ہو گیا، میں نے عبادت کی، بولو نا ملاقات ہو جائے. حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے جب بات آئی تو کہا نہیں ابھی بھی دل بنا نہیں ہے، اور 40 دن عبادت کرو، اور 40 دن عبادت کرو. ارے بادشاہ ہے سلطان احمد، بادشاہ ہے. پھر 40 دن عبادت میں لگ گئے. سلطان احمد فرماتے ہیں میرے رب کی قسم میں 40 دن ایسی عبادت کیا، ایسی عبادت کیا کہ میرے نبی کی کوئی سنت مجھ سے چھوٹی نہیں اور گناہ کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں. کتنے دن ہو گئے عبادت کے؟ کتنے دن ہو گئے؟ 80 دن ہو گئے. اب آئے شیخ احمد کھٹو کے پاس آئے، اپنے شیخ کے پاس آئے، حضرت اب تو میری ملاقات کرا دو، اب تو حضرت خضر سے ملاقات کرا دو. یہ گئے، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا نا ابھی بھی نہیں. حضرت خضر نے فرمایا پہلے چلہ قبول ہو گیا، دوسرا چلہ قبول ہو گیا، اب سلطان احمد کو کہہ دے ایک اور چلہ لگا لے، اللہ اس کے دل کو بدل دے گا اور وہ دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہوگا، وہ دل میں صرف اللہ ہی اللہ. اور ایک چلہ سلطان احمد نے عبادت. کتنے دن ہو گئے؟ 120 دن
दिन, पूरा मजमा बोलेगा मेरे साथ में, 120 दिन गुजारे सुल्तान अहमद बादशाह ने, जिनका नाम अभी आपने पढ़ा, पढ़ना बहुत आसान था, अरे मेरे जैसे को सीखना सिखाना बहुत आसान था, लेकिन काश के कोई सुल्तान अहमद की तरह खड़ा हो जाए। 120 दिन तक मुसलसल इबादत है, रियासत है, मुजाहदा है, सुन्नतों की पाबंदी है, नमाजों का एहतमाम है, गुनाहों से दूरी है। कितने दिन गुजर गए? 120 दिन के बाद अपने हजरत के पास गए, हजरत 120 दिन हो गए, अब हजरत खिजर मुलाकात करेंगे कि नहीं करेंगे? शेख अहमद खट्टू जब हजरत खिजर के पास गए, कुछ पूछते उससे पहले हजरत खिजर ने कहा, बुला लो सुल्तान अहमद को, बुला लो, अल्लाह ने उसके दिल की दौलत को बदल दिया है, अल्लाह ने उसके दिल की दुनिया को बदल दिया है। अब आए, बोलो यहाँ के बादशाह कौन? सुल्तान अहमद। अभी तो यहाँ बना भी नहीं था कुछ, सुल्तान अहमद आए, पूरा मजमा बोलेगा साथ में, कौन आए? सुल्तान अहमद आए। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, अब तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के पास आए, दिल की दुनिया बदल गई है, दिल में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। अब हजरत खिजर के बिल्कुल करीब हो गए, और करीब होकर क्या कहा हजरत खिजर से कहा, ए खिजर, आप तो अल्लाह के वली है, आप मुझे बताओ मुझे क्या काम करना चाहिए, मुझे काम क्या करना चाहिए? सुनना, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ए सुल्तान अहमद, बोलो, हजरत खिजर ने फरमाया, ए सुल्तान अहमद, ये साबरमती दरिया, उसके पास पहले एक बहुत बड़ा इलाका था, बहुत बड़ा इलाका था, और उस इलाके का नाम था बादाबाद। बोलो क्या नाम था? बादाबाद। ये साबरमती दरिया के करीब में एक बहुत बड़ा इलाका था, बहुत बड़ा इलाका था, जहां लोग बड़े खुशहाल थे, उसका नाम था बादाबाद। हजरत खिजर ने कहा, फिर अल्लाह की तरफ से मालूम नहीं क्या हालात है, वो इलाका उजड़ता गया, अब जंगल हो गया, वीरान हो गया। हजरत खिजर ने कहा, मेरे दिल की तमन्ना है सुल्तान अहमद, तू खड़ा हो जा और उसी इलाके में चला जा, साबरमती के करीब में चला जा, जहां पहले बादाबाद था वो उजड़ गया, जा वहां चला जा, और मैं कहता हूं उसका नाम अहमदाबाद रख देना, उसका नाम अहमदाबाद रख देना। सुल्तान अहमद ने इरादा किया कि मैं वहां पे बना दूंगा पूरा शहर, अरे अल्लाह ने बादशाह बनाया, मैं शहर बना दूंगा। और हजरत खिजर से वादा किया, आपने जो अहमदाबाद नाम कहा ना, वही नाम मैं रखूंगा। हजरत खिजर के चेहरे का रंग बदला, कहा, मैंने अहमदाबाद ऐसे ही थोड़ी कहा, तुम अकेले नहीं बनाओगे, 4 अहमद मिलकर ये इलाका बनाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। कितने अहमद मिलकर ये इलाका बनाएंगे? 4। फिर बोलो, कितने मिलकर बनाएंगे? इसलिए हजरत खिजर ने कंडीशन रखी, 2 कंडीशन रखी। एक कंडीशन ये रखी कि साबरमती के करीब में जो पहले बादाबाद था, जो उजड़ गया, वीरान हो गया, हजरत खिजर ने 2 शर्तें रखी। सुल्तान अहमद, तुम वहां पे शहर बनाओगे, मगर मेरी 2 शर्त है, 4 अहमद नाम के मिलकर बनाएंगे, 4 आदमी बनाएंगे जिनका नाम अहमद होगा, और वो ऐसे 4 होने चाहिए जिनकी फर्ज नमाज तो दूर की बात, असर की 4 रकातें सुन्नतें भी कभी न छूटी हो। 2 शर्तें होगी। एक तो बनाने वाले कितने आदमी होंगे? 4 का नाम क्या होना चाहिए? अहमद। क्या नाम होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही अभी भी, क्या नाम होना चाहिए? अहमद। और दूसरी शर्त है कि ऐसे होने चाहिए कि बालिग होने के बाद से उनकी असर की 4 रकात सुन्नतें, हम असर की 4 फर्ज पढ़ते, उसके ऊपर 4 सुन्नतें, वो सुन्नतें कभी न छूटी हो। अब सुल्तान अहमद निकले ढूंढने के लिए। भाई हजरत खिजर ने तो कह दिया 2 शर्त के 4 अहमद मिलेंगे तो शहर बनेगा, बाकी शहर बनने वाला नहीं। अब सुल्तान अहमद ढूंढने निकले, पूरे ये गुजरात के इलाके में गए। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, 2 अहमद मिल गए, एक काजी अहमद मिल गए, एक मलिक अहमद मिल गए। बोलो सुभान अल्लाह। एक काजी अहमद रहमतुल्लाह अलैह मिल गए, एक मलिक अहमद रहमतुल्लाह अलैह मिल गए, फिर कोई तीसरा अहमद न मिले। अब सुल्तान अहमद परेशान। एक दिन हजरत खिजर के पास आए, आपने कहा था 4 आदमी ढूंढना और 4 का नाम अहमद होना चाहिए। सुल्तान अहमद ने रोते रोते कहा, खिजर, एक खिजर अल्लाह के वली, मैं पूरे गुजरात में घूम गया, मुझे 2 अहमद तो मिले, काजी अहमद मिला, मलिक अहमद मुझे मिले, 2 बुजुर्ग मिले जिनकी असर की कभी 4 रकातें सुन्नतें भी छूटी नहीं है, लेकिन दूसरे 2 अहमद नहीं मिलते। हजरत खिजर ने मुस्कुरा कर कहा, दूसरे 2 अहमद नहीं मिलेंगे, वो तो यहीं पे है, वो तो यहीं पे अहमदा। तो कहा कौन? तो कहा एक आप। तो कहा मैं? सुल्तान अहमद ने कहा मैं। कहा तुम्हारी कहाँ असर की सुन्नतें कज़ा हुई है? तो रोते रोते कहा, मेरी भी असर की सुन्नतें कभी कज़ा नहीं हुई, लेकिन मैं इसका अहल नहीं। कहा अहल नहीं, 120 दिन जो इबादत की और अल्लाह के वली के हाथ में दिया, हमने तुम्हें भी वली बना दिया है, अल्लाह ने तुम्हें वली बना। तो एक सुल्तान। और फिर उन्होंने कहा, हाँ अब मैं चौथा समझ गया। तो हजरत खिजर मुस्कुराने लगे, समझ ही जाओगे ना, जब मुरीद बना तो शेख क्यों नहीं बनेगा, उन्होंने तो तुमको बनाया है। तो चौथे अहमद कौन? शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह। ओ सुल्तान अहमद ने जोर से कहा, अल्लाहू अकबर, मैं अब साबरमती
सुल्तान अहमद और मेरे शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, 4 अहमद मिल गए और चारों ऐसे जिनकी असर की सुन्नत है कभी कज़ा नहीं हुई। मेरे दोस्तों, अहमदाबाद की अब संगे बुनियाद वो जिल कादा का महीना था और 7वीं तारीख थी और सन 813 हिजरी थी। आपको नहीं मालूम होगा ना? अहमदाबाद में रहते कौन है? मेरा भी घर बना दे भाई, अहमद नाम है, वैसा नहीं हूं भाई, 4 के बीच में खोटा सिक्का चल जाएगा ना। जिलकादा की 7वीं तारीख, मौलाना अंजुम साहब नोट करें, जिलकादा की 7वीं तारीख सन 813 हिजरी में 4 अहमद जमा हुए और उस जमाने में संगे बुनियाद अहमदाबाद के शहर को शुरू करना है, अहमदाबाद की बुनियाद को रखना है। उस जमाने में, आजकल कैसा होता मालूम? आपने देखा होगा संगे बुनियाद के लिए क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर आता है, आर्किटेक्ट आता है, यूं चौक से निशान बनाता है, सब लोग कुल्हाड़ी लेते और कुल्हाड़ी लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके उसको खोते। उस जमाने में ऐसा नहीं होता, संगे बुनियाद के लिए एक बड़ा गड्ढा बनाया जाता था और चादर को बिछा दिया जाता। जब चादर बिछाई जाती तो कहते अल्लाहु अकबर, अब यहां पर शहर की बुनियाद रखेंगे। लेकिन इस शहर की बुनियाद रखने के लिए जब खड्डा बनाया गया और जब चादर रखने का वक्त आया तो चारों अहमदों ने एक एक सिरे को पकड़ लिया। बोलो सुभान अल्लाह। वो क्या मंजर होगा मेरे प्यारों, ये अहमदाबाद का क्या मंजर होगा। एक सिरे की तरफ नजर करो तो मलिक अहमद नजर आते हैं, दूसरे सिरे की तरफ देखो तो काजी अहमद नजर आते हैं, तीसरे सिरे की तरफ देखो तो हमारे सुल्तान अहमद नजर आते और चौथे सिरे की तरफ देखो तो आलिम रब्बानी शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह नजर आते। चारों सिरे से चादर को अब चले, चादर लेकर चले, चादर लेकर चले और अल्लाह का नाम लेकर अल्लाहु अकबर बोलो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा, अल्लाह बड़ा। अब वो चादर लेकर जा रहे, अभी समझो कि वहां पे वो रखा हुआ है, पूरी डिजाइन बनी हुई है और वहीं पे जाके चादर को रखना है। तो जो अल्लाह के सबसे बड़े वली कौन? शेख अहमद, जिनका मजार मुकद्दस सरखेज में जिनका मजार मुकद्दस, बोलो शेख अहमद। उन्होंने अचानक चादर का सिरा छोड़ दिया। अरे चादर पकड़ के चारों जा रहे थे, अचानक एक अल्लाह के वली ने चादर का सिरा छोड़ दिया। तो काजी अहमद, मलिक अहमद और ये सुल्तान अहमद, हजरत कहां जा रहे हो? कहा ठहरो ठहरो, मैं जरा मुलाकात करके आता। वो तीनों कहते हमने देखा एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े कोने में खड़े थे, ये उनके साथ मुलाकात कर रहे और ये कह रहे हम चादर पकड़ के खड़े, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। अरे घंटे गुजर गए, आ नहीं रहे। अब ये तीनों के तीनों सोचने लगे, मलिक अहमद, काजी अहमद और सुल्तान अहमद, कि शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह नहीं आ रहे। बड़ी देर के बाद शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह आए, जैसे चेहरे पे नूर था। कहा चलो 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 चादर उठाओ। तो उन्होंने कहा आप ही ने तो देर कर दी, कब से हम लोग खड़े हैं। तो कहा नहीं नहीं चलो चलो चादर लेकर चलो। अब चादर को वहां पे रखा और ये चारों अल्लाह के वली ने जो मांगा होगा, दुआ करो अल्लाह ये शहर में हमको नसीब फरमाए, और जो सुकून मांगा होगा अल्लाह हमें अता फरमाए, जो राहत मांगी होगी अल्लाह हमको अता फरमाए। चारों बुजुर्गों ने बहुत देर तक दुआ मांगी। जब दुआ मांग के फारिग हो गए तो काजी अहमद, मलिक अहमद, सुल्तान अहमद, तीनों ने पूछा शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह से पूछा वो कौन थे, वो बुजुर्ग कौन थे जो आप चादर छोड़ के चले गए? तो फरमाया हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, वही हजरत खिजर अलैहिस्सलातु। कहा आपने बहुत देर तक बात की, कहा बातें तो बहुत देर तक की, लेकिन एक जुमला सुनाऊंगा। हजरत खिजर ने अपनी जुबान मुबारक से कहा जाओ चारों अहमद जाओ, जाओ चारों अहमद जाओ, आज चादर बिछा दो, चादर बिछा दो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। और हजरत खिजर ने कहा अल्लाह की कसम ये शहर बहुत बड़ा अजीमुशान शहर होगा, यहाँ अल्लाह के दीन का चर्चा होगा, हाफिजों की जमात होगी, कारियों की जमात होगी, उलमा की जमात होगी, अल्लाह इस शहर को दीन से आबाद कर देगा। इसीलिए मेरे दोस्तों मिरात अहमदी नाम किताब में लिखा है कि जब हमने ये सारा मंजर बयान किया, वो काजी अहमद अपने जमाने के बुजुर्ग हैं जिनका पट्टन के उलमा में आज भी शुमार होता है। मलिक अहमद जिनका मजार मुबारक आज भी अहमदाबाद में कालूपुर में है, और सुल्तान मरकज के पास, और सुल्तान अहमद इनका मजार मुबारक जामे मस्जिद के करीब मानेक चौक में, और सरखेज में। इन सब के वलियों का वली शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह है। और मेरे दोस्तों मिरात अहमदी में लिखा है, ये सारा वाक्या बयान करने के बाद किताब का नाम देता हूं मिरात अहमदी, उसमें लिखा है कि लोगों ने जब ये सुना, ये चर्चे सुने कि एक चादर का सिरा काजी अहमद के हाथ में था, एक चादर का सिरा मलिक अहमद के हाथ में था, एक चादर का सिरा सुल्तान अहमद के हाथ में था, एक चादर का सिरा शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में था, जिनकी कभी असर की सुन्नतें भी कज़ा नहीं हुई। लोगों ने कहा इसका नाम भले हजरत खिजर ने अहमदाबाद रखा, लेकिन किताबों में लिखा इसे जीनतुल बिलाद कह दो, पूरे दुनिया की खूबसूरती कह दो, और इसे कह दो अरूसुल ममलका, पूरे हुकूमत की दुल्हन नजर आएगी तो अहमदाबाद शहर नजर आएगा।
मेरे दोस्तों, जिनका नाम आपने ये बोर्ड पर देखा, सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह, आज भी अपने मजार मुबारक में न जाने कैसा तड़पते होंगे, और वो तड़पाने वाले हमें। ये सुल्तान अहमद ने अहमदाबाद में हुकूमत की, बोलो ना, अहमदाबाद में 32 साल 6 महीना और 22 दिन। लिखो इसे, 32 साल 6 महीना 22 दिन हुकूमत की। लेकिन मेरे प्यारों, कसम खाने वालों ने कसम खाकर कहा, पूरे अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में इंसाफ का वो डंका बजाया, इंसाफ का वो डंका बजाया कि पूरी जिंदगी में कभी किसी को नाहक मारा भी नहीं है, किसी को गाली भी नहीं दी है, किसी को धक्का भी नहीं दिया। बादशाह थे, बादशाह थे। आज हमारे पास थोड़ी हुकूमत आ जाए, 4-5 आदमी हमारे अंडर में काम करे तो तेरी माँ की और तेरी बहन की, और ये नहीं बोले तो, और बोले नहीं गाली मत दे, नहीं नहीं ये तो गाली से समझेंगे, तो तू किससे समझेगा? गालों से समझेगा? तू इतना होशियार हो गया? मैं सही कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, आज आवारा गर्दी हो रही कि नहीं हो रही है? इस शहर में हो रहा है कि नहीं हो रहा? और शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह, आज जिनका मजार मानिक चौक में, सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दोस्तों, वो बादशाह है। 32 साल हुकूमत करना कोई आसान नहीं, और मैंने पूरी बात आपको बताई। 32 साल 6 महीने 22 दिन सुल्तान अहमद ने यहां पर इस्लाम का परचम लहराया, ईमान का परचम लहराया, ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहराया। कभी किसी को मारा नहीं, किसी को गाली नहीं दी, किसी को धक्का नहीं दिया। आज उसी जमीन पे बैठ के हम लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, हमें एक दूसरे आलिमों पर कीचड़ उछालते हैं। आज हम जमात जमात में तकसीम हो जाते हैं। क्या सुल्तान अहमद ने अहमदाबाद को इसीलिए बनाया था कि जीना करना? अरे बोलो ना, क्या सुल्तान अहमद ने इसीलिए बनाया था कि अहमदाबाद में जीना करना?